Hello, how are you? I hope you all are well in this pandemic situation, and you all students, you are studying at home in this very harsh condition. It is very tedious job to do online classes. Hello student, one more thing, in this time you have to stay at home and you have to learn, so you also have to choose some channel which will help you continuously in learning process. So I am Chandan Kumar Sharma. My channel's name is Beats for Maths. You can get here lots of explanation of the video and a very good explanation of the chapters from the maths, R.D. Sharma books, R.S. Agarwal book and NCERT, basically from which in examination comes and regularly student study. Now let's start. Today we are going to start trigonometric chapter. Trigonometric which is useful for also class 9 students, because they when they will do physics questions, there some uses will be of this trigonometric chapter. So this chapter can be seen by class 9 student as well as by the class 10th student. So let's begin today trigonometric chapter. Here we have the trigonometric word, trigonometric. Here you when divide this word, you will get three segment of this word. Tri means three, and gon means side, and metric here means measurement. Basically we are here learning trigonometry, in which we will study on the basis of side. Gon of the triangle means side of the ट्रायंगल के साइड बेस पे. थोड़ा थोड़ा हम हिंदी भी इसलिए यूज करेंगे, इन इंडिया में ज्यादातर बच्चे लोग हिंदी में समझते हैं. सो व्हाइल वी आर डूइंग द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन, वी विल गो एज वेल एज हिंदी इन इंग्लिश बोथ. लेट्स बिगिन. ट्रायगोनोमेट्री ये तीन वर्ड से बना हुआ है. ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड, मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट. राइट एंगल ट्रायंगल जो है, हम लोग ट्रायंगल पढ़े, तीन तरह का होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ये साइड के बेसिस पे तीन होता है. साइड के बेसिस पे कौन सा हो गया? आइसोसेलेस, स्केलेन एंड इक्विलेटरल. और एंगल के बेसिस पे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल. जो क्लास 10th में और 9th में आप जो यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे. ठीक है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बेसिकली पहले समझे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन राइट एंगल ट्रायंगल. तो यू नो राइट एंगल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल विच हैव वन एंगल राइट एंगल. एक एंगल इसका क्या होता है? राइट एंगल है. सपोज दिस एंगल बी इज द राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है, and other two angle will be lesser than 90 degree means acute angle. चलिए अब बात करते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अदर कंपोनेंट्स क्या है? ये जो साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है. तो इस साइड्स के कुछ नाम हैं. तो ये जो अपोजिट साइड आप देख रहे हैं, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है AC, दिस साइड इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल. हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल. And we have now two acute angle, तो one A and C. तो सपोज आप अगर इस एंगल का यूज कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए इसके सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा. तो यू आर टेकिंग दिस, इफ यू आर यूजिंग दिस acute angle, so this one will be perpendicular, and this side, this one side which is
adjacent to this angle, actually this one is also adjacent, but this is hypotenuse is fixed, side opposite of right angle, perpendicular depends upon the acute angle you are taking, side opposite of acute angle, and the third one side what remaining, this is hypotenuse, this one perpendicular, and now this is the base of the triangle now. So base, perpendicular and hypotenuse, you understood, remember it, right angle के सामने hypotenuse, जो acute angle ले रहे हैं उसके सामने perpendicular, और जो आपका थर्ड साइड बच गया that one is the base. ओके, अब देखिए ये चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का, 3 पार्ट्स उसमें से होता है, एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फिर होता है ट्रिगोनोमेट्री ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, फिर आपको आइडेंटिटीज, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, और इसके एप्लीकेशंस जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट में आता है. तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. आप जानते हैं रेशियो क्या होता है, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेम काइंड्स ऑफ क्वांटिटी, दो सेम तरह के क्वांटिटी का कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो. तो हियर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वी आर वेरी वेल acquainted with the trigonometry, this is related to side. Now we are talking of ratio, means this is ratio of the side. Let's do, we have 6 ratios, 6 trigonometric ratio, sine, cosine, tangent, secant, cosecant and cotangent. ओके, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, sin. sin मीन्स पाप करना होता है, लेकिन वो पाप वाला नहीं है sin. यहाँ पे sin ये साइन का शॉर्ट है, और इसको हम लोग साइन ही पढ़ेंगे. ये cos, ये हो गया tan, और इसको sec, और इसको cosec, इसका शॉर्ट हो गया, और इसको cot. ये कोटेंजेंट का शॉर्ट cot हो गया. साइन का ये sin लिखना है SIN, लेकिन पढ़ना भी साइन है इसको. कोसाइन का cos, टेंजेंट tan, सेकेंड sec, कोसेकेंड कोसेक, और कोटेंजेंट का cot हो गया. अब देखिए ये जो 6 रेशियो है, ये रेशियो है, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं. तो सपोज अगर हम लोग यहाँ पे कोई थीटा एंगल ले लेंगे, और देखिए परपेंडिकुलर को स्मॉल p से डिनोट कर दीजिए, बेस को b से, और हाइपोटेनस को h से. ओके, तो अब देखते हैं कि ये किसका रेशियो है, ये किसका रेशियो है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे. तो पहले आइए, साइन किसका रेशियो है. तो अगर हम लोग थीटा के लिए देखें तो साइन थीटा करके लिखेंगे. तो साइन थीटा जो है रेशियो किसका है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, p और h का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. और कॉस थीटा जो है आपको किसका रेशियो है, ये बेस और हाइपोटेनस का है, बेस और हाइपोटेनस का. नेक्स्ट आ गए टेन, टेन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का. देखिए ये वाला जो है ना, ये आप याद कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है. देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं पंडित, देखिए पंडित, और ये हो गया बद्री, है ना, और ये हो गया प्रसाद. ये तो नाम हम लोग को याद रहेगा, पंडित, बद्री, प्रसाद. और उसके नीचे देखिए H है, तो हर हर, हर हर, है ना, बोले. तो देखिए हम लोग को याद रह जाएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. ठीक है, तो P बाय H, B बाय H और P बाय B. P रिप्रेजेंट कर रहा है आपको परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, B बेस, इस तरह से. अब आइए यहाँ पे तो हम लोग 3 लिखे हैं, और ये बाकी 3 जो रेशियो है, जो और 3 रेशियो है वो क्या है. अब देखिए ये जो है सेकेंड जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, और कोटेंजेंट जो है यानी कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल है. कैसे, मीन्स आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक. तो कोसेक जो है, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बाय H है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, H बाय P. तो
तो हम लोग यहाँ पे h बाई पी लिखेंगे। और ये देखिए कॉस का है रेसिप्रोकल सेक, तो यहाँ पे आप सेक लिखिए। सेक थीटा जो है एक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसका उल्टा क्या होगा, b बाय h का उल्टा h बाय b, तो यहाँ पे h बाय b हो गया। और ये टेन का उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल, चलिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इसका उल्टा क्या होगा, p बाय b का उल्टा b बाय p। तो आप देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब बोलेंगे कि रेशियो है, ऑलरेडी रेशियो है, कैसे कि हम लोग देखिए जो बाय में लिखते हैं कोई भी ऐसे रहता है 2/3 रहता है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, तो दिस इज द रेशियो ऑफ साइड। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये क्या है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से साइड का रेशियो, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ओके, अब आइए, आप अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ गए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे, जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ये फार्मूला आपको इसमें यूज आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूला से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इसमें माइनस हो जाएगा और b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आपको इसमें यूज होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 then find all t रेशियो। टी रेशियो शॉर्ट में बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कीजिए। तो अभी आपने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, जिसमें से एक दिया हुआ है, तो 5 बचा हुआ है, उस 5 का वैल्यू क्या होगा। एक का वैल्यू आपको दिया हुआ है और बाकी 5 का वैल्यू निकालना है। तो अभी जो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b और कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये साइन का उल्टा है h/p, सेक थीटा कॉस का उल्टा है h/b और कॉट थीटा हो गया आपको b/p। तो वो निकालना है। तो आपको ए, इसमें क्या है, पी बी एच तीनों चाहिए। साइन थीटा है, साइन थीटा में क्या दिया हुआ है, p/h, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, बेस निकालना है, यानी कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब लिखिए यहाँ पे, सिंस साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको p/h, यानी p को मान लेंगे 3 के और h को 5 के। अब ये k कहां से आ गया है ना, एक्चुअली देखिए 3/5 क्या है, रेशियो है। 3/5 क्या है, रेशियो है। तो रेशियो तो हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसके साथ हो सकता है कोई अदर फैक्टर मल्टीप्लाई किया हो, तो उस अदर फैक्टर को हम लोग k कंसीडर करेंगे। मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k, हाइपोटेनस इक्वल टू 5k। देखिए 3/5 तो 15 बाय क्या कहते हैं 75 से आ जाएगा, नहीं 3 से 5 से कटाइए, 3 इधर हो गया, 5 कैसे 25, 5 से कटेगा। तो देखिए ये जो है 15/25 है, इससे भी आपको 3/5 आ रहा है ना। और चलिए 30/50 लेंगे तो यहां से भी आपको 3/10 आएगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है
कि हम ये क्यों के लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे 15/25 का भी रेशियो 3/5 है और 30/50 का भी रेशियो 3/5 है कि नहीं। तो क्या है, 30 का है या 50 का है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं ना, इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने के मल्टीप्लाई कर दिया है कि कोई अदर फैक्टर है इसके, जैसे यहाँ पे 3 हो सकता, 5 है दोनों में, इसमें जो है 10 दोनों में फैक्टर है ना, 10 कॉमन फैक्टर है, तो वो कॉमन फैक्टर के है जिसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। तो हम लोगों ने P और H लिख लिया है। अब हमारा बचा है B फाइंड करने के लिए। तो B के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, √H² माइनस P²। तो H आपके पास क्या है 5K, इसका स्क्वायर 25K², और ये B है 3K, 3 का स्क्वायर 9K²। तो चलिए यहाँ पे 25 में 9 माइनस हो गया, 25 में 9 माइनस हुआ कितना 16। चलो 16K²। तो 16K² का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4K, यानी हमारा बेस क्या हो गया 4K। अब आपको जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे साइन हो गया, कौन कौन सा बचा हुआ आपके पास, कॉस बचा हुआ है, टेन बचा हुआ है, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये आपको 5 बचा हुआ है। तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। तो B हमारा कितना है 4K और H कितना है 5K। तो यहाँ पे 5K, अब K कैंसिल कर दीजिएगा, क्या बचेगा 4/5। चलिए हम लोगों ने दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया। अब इसका 10 का क्या है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए तो P कितना है, P हमारा है इसमें यहाँ पे देखिए 3K, और B अभी फाइंड किया है वहां पे 4K, K कैंसिल तो 3/4। नेक्स्ट कॉसेक हो गया आपको H/P, H कितना है 5K, P कितना है 3K, तो 5/3। नेक्स्ट सेक, सेक का लिखेंगे आप H/B, ये किसका रेसिप्रोकल है कॉस का। देखिए कॉसेक किसका है साइन का रेसिप्रोकल, सेक किसका है कॉस का, और कॉट किसका है टेन का है। H/P, H/B, H कितना है आपका 5K, B कितना है 3K, नहीं 4K, तो K कैंसिल 5/4। और नेक्स्ट हो गया कॉट, कॉट इक्वल टू B/P, तो B हमारा है 4K और ये 3K, 4/3। इस तरह से आप बाकी के 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए, एक तो दिया हुआ था और बाकी 5 फाइंड कर लिए। आप जो है वीडियो को अगेन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में आता भी है।